everyone, welcome back to Perception 101. I hope everyone is safe and had an amazing start of the year. I know that it has been a while that a new season has come out, but here I am back again with another interesting third season for my podcast. I'm willing to call this season The Journey, aiming wrong or right. In this season, I'm aiming to talk about unorthodox and unconventional careers that people opt for, put their efforts in, and come out with something great. The reason behind doing such a season is to make people aware of different areas, interests, or hobbies they can work on to make a career out of it. Since the last decade, there have been a number of new things that have come out. There have been number of new opportunities to take to make a career out of that it can be very, very difficult and confusing for people to choose from and put their all and do things upon. So here I am with the third season, which is going to be all about careers, how people started, where they are now, where they want to be, and yes, everything in between. So let's start our first episode. For our first guest, we have a person who has been working out very hard to tell us inspirational stories through his podcast platform. Yes, he is a podcaster. He started out young. You can go and check out Welcome the AG Show in different platforms, including Spotify, Apple Podcast, and Anchor. So let's not waste more time and welcome Gaurav Kumar. So hi Gaurav, welcome to Perception 101. How are you? कैसे हो आप? कैसा चल रहा है सब कुछ? I'm आप ठीक ठाक? totally fine, and thank you once again for joining me and having me here. ओके, तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप क्या करते हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या पढ़ रहे हो, सब कुछ. So basically, I'm a second year chemical engineering student and pursuing my BTech from Meerut Institute of Engineering Technology. And as a side hustling, I'm also publishing content on different platforms such as Instagram and something YouTube Shorts. And also, my main focus is on podcast. So I'm also publishing podcast episodes, 3 episodes per week on stories. तो आपका पॉडकास्ट का जो एपिसोड्स है, अभी एग्जाम्स के ड्यूरिंग भी आप पॉडकास्ट के एपिसोड्स डाल रहे थे? कंटेंट जो है मेरे वीडियो कंटेंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, हाँ, लेकिन जो पॉडकास्ट कंटेंट है वो मैं कंसिस्टेंटली जो है हर वीक 3 पॉडकास्ट एपिसोड्स पब्लिश करता हूँ. उसमें मीन्स कोई लैग नहीं होता मेरी तरफ से, तो वो मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ और करता रहूँ. My podcast name is Welcome the AG Show, and here AG stands for Avenger Gaurav, and this is my brand name. And किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सो टोटली देखें तो 10 to 11 प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है. 8 प्लेटफॉर्म्स तो वही हैं जो जहाँ पे एंकर डिस्ट्रीब्यूट करता है, सच एज एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, स्टिचर एंड अदर 4 प्लेटफॉर्म ऑल्सो. एंड उसके अलावा जो जहाँ पे मैंने पर्सनली अपने पॉडकास्ट को सेंड किया है वो है जियो सावन, गाना एंड कुकू एफएम. ओके, जियो सावन और उसमें भी है, मतलब एप्पल में भी है, स्पॉटिफाई में भी है. जो एंकर डिस्ट्रीब्यूट करता है वो अलग, बट आप जो इंडियन प्लेटफॉर्म्स है उनको भी आप यूज कर रहे हो. या आपकी नीश क्या है? स्टोरी टेलिंग, राइट? आप स्टोरीज सुनाते यस. हो. किस टाइप के स्टोरीज होते हैं वो? प्लीज हमारे लिसनर्स को अगर आप बता सकते हो. ओके, सो टाइप की अगर बात करें तो मींस मैंने नीश स्टोरी टेलिंग चूज किया है, हाँ, लेकिन उसमें कोई मैंने माइक्रो नीश अभी सेलेक्ट नहीं किया है. सो उसमें एक कैटेगरी का ऑप्शन होता है, तो कैटेगरी में मैंने चूज किया सोसाइटी एंड कल्चर. सो बेसिकली जो स्टोरीज रहते हैं मेरे, वो आज हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है ना. जैसे अभी मैं कॉलेज आया था, तो मैं घर से कॉलेज तक की जो मेरी जर्नी थी, मैंने उसी को एक स्टोरी फॉर्म में एलैबोरेट कर दिया, और लास्ट में जो भी मैंने चीजें सीखी वो मैंने बता दिया, है ना. तो ये एक तरीके का स्टोरी हो गया. मींस मेरे स्टोरीज में एंटरटेनमेंट भी रहता है, सस्पेंस भी रहता है, मींस कुछ कह सकते लर्निंग भी हैं रहता ऑल है, इन वन मैंने है. सुना है दो तीन. मैंने दो तीन सुना, कुछ लर्निंग भी अच्छी खासी रहती है, आप कुछ ना या कुछ अच्छी लास्ट में एक लर्निंग देते हो. दैट्स अच्छा या है, काफी सही है. तो आप जैसे, मैं भी एक पॉडकास्टर हूँ. अभी जैसे हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम लोग उसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से इंटरैक्ट करना चालू किए. So when I started, somewhere or the other, my mentality was to give out people what I think about different kinds of unorthodox ऐसी topics जो सोसाइटी बात करने के लिए इतनी रेडी नहीं है. जैसे आप मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात हो जाती है आजकल.
Like mental health is one topic. Mental health is so important right now, but बिल्कुल people don't talk about it that much. जितने उनको बात करनी चाहिए, या उनके पास उतनी एडुकेशन अवेलेबल नहीं है, उतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि वो मना ही कर देते हैं उनको उसको बिलीव करने। तो उस हिसाब से मैं करता हूँ। मेरा मेन रीजन वो है। आपका मेन रीजन क्या है? व्हाई पॉडकास्टिंग? व्हाट मेक्स यू दैट मच कॉन्फिडेंस? आपको वो कॉन्फिडेंस क्या चीज देता है जो आप पॉडकास्टिंग करते हैं? या एक्चुअली क्वेश्चन जो पूछा आपने ये इम्पोर्टेंट भी है। मींस सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, अगर कोई भी वर्क हम शुरू कर रहे हैं, अगर जस्ट बिगिनर लेवल में, तो हमें अपना पर्पस क्लियर करना चाहिए, है ना, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें मन करे, मतलब हमारा मोरल डाउन हो जाए कि नहीं इससे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हम अपने पर्पस को याद करके उसे क्विट नहीं करेंगे। सो मेरा जो मेन पर्पस है वो ये, अब देखो मैंने स्टोरी टेलिंग इसलिए चूज किया था क्योंकि स्टोरीज जो है वो लोगों को इजीली कनेक्ट कर पाती हैं, है ना। मींस अगर मैं एक सिंपली एक बात बोल रहा हूँ और उसको अगर मैं एक स्टोरी के थ्रू बोल रहा हूँ, तो ये सेकंड वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा हैवी रहेगा, है ना, वो इजीली कनेक्ट हो पाएगा। सो मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं अलग अलग क्रिएटर से, अलग अलग इन्फ्लुएंसर से अपने पॉडकास्ट के थ्रू एक कनेक्शन बढ़ा पाऊँ। जैसे मैंने आपके साथ बनाया, तो ये भी एक पॉडकास्ट से ही आया, तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन बिल्ड हो, नेटवर्किंग कर पाऊँ। सो मेन जो मेरा पर्पस है वो यही है। तो आपका नीश स्टोरी शेयरिंग है, अलग अलग तरीके के आप स्टोरी शेयर करते हो। मेरा भी कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि आई ऑल्सो ट्राई टू शेयर माई स्टोरी, नॉट दैट कि कोई और मुझे कुछ स्टोरी बताए या कुछ, बट मेरे खुद के पर्सनल लाइफ के कुछ इंस्टेंसेस या कुछ मैं शेयर करने का कोशिश करता हूँ। उसके थ्रू ये कम्युनिकेशन लेवल बनता है, वरना तो कोई ऑडियंस उतना सुन नहीं पाता, उनको वो इतना इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, अगर काफी बोरिंग हो जाता है। कहीं ना कहीं 10 मिनट का आपका रहता है, तो मेरा कहीं 35-40 मिनट्स का अगर एक एपिसोड रहता है, वो 10 मिनट भी बोरिंग हो सकता है, 40 मिनट भी बोरिंग हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग बनाना रहा हमारे ऊपर, अब वो हम कैसे बनाते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। आप तो फिर भी अकेले कर रहे हो, मैं तो फिर भी गेस्ट को ला के साथ में करता हूँ, मेरा वैसे कॉन्वर्सेशन बन जाता है। आपका ये रहता है कि सारा का सारा चीज आपके ऊपर है कि आप कैसे फाइनल कंपोनेंट बाहर देते हो कि इंटरेस्टिंग रहे, वरना लोग को तो पता ही नहीं रहेगा कि हाँ, लाइक आधे सुनते हैं फिर छोड़ देते हैं। मेरा भी वही हालत रहा था स्टार्टिंग में कि आधा सुनता था कोई लोग, एंड देन दे यूज्ड टू लीव इट। तो मैंने धीरे धीरे खुद से एक वो लेके आया। तो आप अपना कोई एक स्टोरी शेयर करने के लिए, वुड यू माइंड शेयरिंग अ स्टोरी, अपने कोई पुराने या नए एपिसोड आपका मन, सो दैट पीपल नो कि आपके कैसे स्टोरीज होते हैं? या बिल्कुल। सो जब मैंने जस्ट अपना पॉडकास्ट शुरू किया था, तो स्टार्टिंग में तो मैं भी मीन्स ऐसा ही था कि मेरे को कोई टॉपिक मिला तो सिंपली मैं गूगल पे जाके अगर उससे रिलेटेड कोई अच्छा स्टोरी है तो उसी को मैं अपने लैंग्वेज में सुना देता था। फिर लेकिन धीरे धीरे जो है ये मेरे को इसका आदत डलता गया स्टोरीज का, मुझे स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। तब मैं सिंपली अपने इंस्टाग्राम पे जाके एक जो क्वेश्चन टैब होता है वो पब्लिश करता हूँ और उसमें जो मेरे फॉलोअर्स है उनसे आइडिया टॉपिक्स मांगता हूँ कि किस टॉपिक पे जो है अब आप लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं। तो वहाँ से बहुत से टॉपिक्स आते हैं, तो उनमें से 8 to 10 टॉपिक्स में सॉर्ट आउट करता हूँ, एंड देन फिर उसमें फिर स्टोरी फ्रेम करने की प्रोसेस जो है शुरू होता है। सो इसी में एक जो बहुत अच्छा स्टोरी है जो मीन्स बहुत ज़्यादा पसंद किया था मेरे जो ऑडियंस ने, क्योंकि उसमें ज़्यादा लिसन्स आए थे और मुझे एंकर में एक वॉइस नोट का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी जो है मुझे अच्छे खासे रिप्लाईज आए थे। तो वो था स्टोरी ऑफ डैड एंड सन। तो ये एक्चुअली एक तरीके से मेरे लाइफ से ही निकाला गया स्टोरी है ना, कि जैसे डैड और सन में ज्यादा अच्छा नहीं बनता है, बहुत से लोगों के साथ हुआ है। तो मेरा खुद ये एक कह सकते हैं परसेप्शन है कि मेरे डैड के बीच में भी ज्यादा कुछ अच्छा कनेक्शन नहीं था। तो फिर धीरे धीरे हाँ, लेकिन कभी कुछ कुछ होता था, जैसे कुछ काम पड़ा तब मैं जाता था, बातचीत होता था, ऐसी ऐसी चीजें चलती थी। कुछ बात भी करना है तो वो फिर मम्मी के थ्रू जाके बात होता था। तो फिर उसी को मैंने सोचा कि एक स्टोरी फॉर्म में सुनाया जाए। तो इस पे एक स्टोरी मैंने बनाया था। उसमें क्या था कि एक बच्चा था, उसका मैंने नाम दिया था रोहन, है ना। तो वो रोहन और अपने डैड के साथ, उसका रोहन और डैड का भी सेम कॉम्बिनेशन था, ज्यादा अच्छा नहीं बनता था, लेकिन जो उसके डैड थे वो चाहते थे कि हाँ, जो मेरा बेटा है वो मेरे से ज्यादा घुल मिल के रहे, मेरे से बात करे। उन्हें भी समझ में आ रहा था क्योंकि वो एक आर्मी मैन थे, और आर्मी में तो होता है हमेशा पोस्टिंग आता रहता है ना। और अगर कुछ ज्यादा खतरनाक जगह पे पोस्टिंग आया है, डेंजर इलाके में, माउंटेन पे आ गया, तो फैमिली साथ में नहीं जा पाती।
है ना। तो मेरा भी यही था, मेरे पापा आर्मी में ही है, तो मैं भी जो है, हम मेरे और पापा में ज्यादा डिफरेंस रहा है, ज्यादा हम लोग साथ में नहीं रहे। तो वैसे ही वहाँ पे था, रोहन जो है अपने डैड के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता था, इसी वजह से उनके बीच में जो है थोड़ा गैप बढ़ गया था। तो लेकिन जब उसके फादर रिटायर हुए आर्मी से 25 ईयर के बाद, तब उन्होंने सोचा कि हाँ, अब मुझे अपने बेटे के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और उसके साथ जो और मेरे और उसके बीच में गैप है, उसको फिल करना चाहिए। तो स्टोरी ऐसी शुरू हुई। तो जो उसके डैड थे, उन्होंने कहा रोहन से कि रोहन, चलो हम लोग बाहर चलते हैं, घूमते हैं, एकदम शाम का मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, है ना, फरवरी का मौसम था। तो वो दोनों बाहर जाते हैं वॉक पे। तो वो लोग चलते रहते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं। रोहन उतना मतलब फ्रैंक फिर भी बात नहीं कर रहा होता है। हाँ, तो जो उसके डैड है, उसको समझ में आता है कि रोहन को कुछ प्रॉब्लम है ना। तो वो पूछते हैं कि रोहन, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो फिर भी वो कुछ ज्यादा नहीं बोलता। वो लोग चलते रहते हैं, बातचीत होता रहता है। तब चलते चलते 1 घंटा बीत जाता है, और उसी बीच में जो रोहन के डैड रहते हैं, थक जाते हैं चलते चलते। तो दोनों जो है एक पार्क के पास नीचे जमीन पे बैठ जाते हैं, है ना। और फिर जो रोहन के डैड होते हैं, उनको प्यास लगता है। तो रोहन को बोलते हैं कि तुम मेरे लिए पानी ले आना थोड़ा, यहीं कहीं से देख के। तो फिर रोहन जो है उनके आदेशों का पालन करता है और सीधा निकल जाता है रास्ते पे पानी देखने। बल्कि दूर दूर तक कहीं पानी था नहीं, उसे ये बात पता था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उसके फादर थे, तो वो रिस्पेक्ट के लिए निकल जाता है ढूंढने। तो ढूंढते 20 मिनट के बाद उसे अपने जहाँ पे वो लोग बैठे थे, वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक तालाब जैसा मिलता है। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा तालाब रहता है, और उसमें पानी रहता है। तो वो पानी साफ रहता है, लेकिन जैसे ही वो पानी निकालने जा रहा होता है, तो पीछे से एक बुलक कार्ट होती है, बैलगाड़ी, वो आती है, और उस गड्ढे जो उसका गड्ढा होता है, जो तालाब था बड़ा सा, उसमें जो उस बुलक कार्ट का टायर चला जाता है। तो जो पूरा पानी था वो गंदा हो जाता है। तो एक वही सोर्स था पानी का उसके पास, और वो भी जो है वो अब गंदा हो चुका था। तो अब क्योंकि उसके ऊपर जो है वो पूरा कीचड़ आ चुका था, जो उसके टायर में था बुलक कार्ट के, तब वो और उदास हो जाता है। वो कोशिश करता है, अपना हाथ फैलाता है पानी पे कि शायद हाथ फैलाने से जो गंदगी है वो हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो उदास होके वापस अपने पापा के पास चला जाता है और उन्हें पूरी कहानी सुनाता है। तो उसके पापा बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम 20 से 30 मिनट बाद फिर से जाना उस जगह पे, और फिर देखना, और उस समय अगर पानी हो तो ले आना। तो वो सोचता है रोहन कि अभी तो मैंने बताया आपको कि पानी खराब है, मतलब पानी गंदा हो चुका है, उसके बावजूद आप बोल रहे हैं 20 मिनट बाद जाना। ये सब वो सोच रहा था, बोलता नहीं है। तो लेकिन वो बोलता है, ठीक है, मैं 20 मिनट बाद फिर से जाता हूँ। तो जब 20 मिनट बाद वो वापस से जाता है उसी तालाब के पास, जो पानी गंदा हो चुका था, अब जब वो जाके देखता है तो वो पानी जो है वो साफ था। तो उसे समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हुआ। तो वो ज्यादा सोचता नहीं है, पानी ले लेता है और वापस जाके अपने पापा को दे देता है, और उन्हें ये कहानी सुनाता है कि पहले तो पानी खराब था, उनको पता था बात, लेकिन 20 मिनट बाद जब मैं गया तो वो पानी साफ हो चुका था। तब जो उसके पापा हमें बोलते हैं कि समझ में आया तुमको ऐसा क्यों हुआ। तो रोहन बोलता है, नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मैंने ज्यादा सोचा भी नहीं। तब जो उसके पापा होते हैं बोलते हैं कि जब तुम पानी लेने गए थे, पानी क्योंकि गंदा हो चुका था, उसके ऊपर जो है वो उसके अंदर मिट्टी चला गया था उस बुलक कार्ट के टायर से। तो तुमने क्या किया था, अपना हाथ फैलाया था, हाथ फैलाने के बाद तुम जो है वापस यहाँ आ गए थे। तो वहां एक्चुअली हुआ क्या, जब तुमने हाथ फैलाया तो जो पानी जो गंदगी था, है ना, वो ऊपर से जो है वो नीचे सेटल डाउन हो चुका था, और जो साफ पानी था वो ऊपर आ गया था। लेकिन वो तुम्हें उस समय नहीं दिखा, क्योंकि वो तुमने मतलब हाथ फैलाया और तुरंत आ गए। तुम्हें क्या करना था, थोड़ा देर वेट करना था। अब जैसे 20 मिनट वेट करके तुम जब गए, तब जो वो पानी है वो साफ हो चुका था। तो इस कहानी से क्या सीखा हमने, ये सीखा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन नहीं था, तो वो कनेक्शन कैसे सुधर सकता है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कैसे सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहला तो हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना है किसी भी चीज का, और किसी भी चीज को टाइम देना है ना। वी जस्ट नीड टू गिव सम टाइम, एंड जो वो वर्क है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रोहन ने थोड़ा सा टाइम दिया, 20 मिनट, और वो जो पानी गंदा था अब वो साफ हो चुका था। तो यहाँ से जो है हमने ये चीज सीखा। तो ये वो स्टोरी थी। और तो ये स्टोरी आपकी खुद की स्टोरी होगी कहीं ना कहीं, मेरे को तो यह लगा आप खुद हाँ थे हाँ, बिल्कुल। इसके शायद, आप अपने हाँ खुद हाँ, के प्रेजेंट लाइफ से निकाल के दिए। बिल्कुल।
मेरे फादर भी जो है वो आर्मी से ही थे और मेरे उनके बीच में भी ज्यादा अच्छा कनेक्शन नहीं था। फिर रिटायर होने के बाद उन्होंने भी कोशिश किया, मैंने भी कोशिश किया, तो अब जो है थोड़ा बहुत अच्छे से बात होता है। पहले उतना तो अच्छे से नहीं बढ़िया था। है। तो आपके पेरेंट्स को ये चीज के बारे में पता है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप नई चीज सीख रहे हो या नई कुछ ट्राई कर रहे हो? हाँ, जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था तो बिल्कुल स्टार्टिंग में तो नहीं पता था, है ना? और वो लोग मतलब पेरेंट्स जो ज़्यादा चाहते भी नहीं थे इस सब में। हाँ, लेकिन फिर क्योंकि जो मेरा भाई है वो छोटा है मेरे से, है ना? तो जब मैं स्टोरीज़ बोलता था, मैं छत पे जाके बोलता था कि ज़्यादा आवाज़ ना आए, तो उसने 1-2 दिन सुन लिया मेरे को कहानी बोलते हुए। तो उसने जाके मम्मी को बता दिया कि भैया कहानी बोल रहे हैं, कर रहे हैं। तो फिर मम्मी ने बोला कि मुझे भी सुनाओ। क्या बोल रहे थे तुम छत पे? 1 घंटे से छत पे थे, क्या कर रहे थे? तो मैंने बताया कि मैं पॉडकास्ट, उनको तो पता नहीं पॉडकास्ट क्या होता है, तो मैंने बोला जस्ट मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, मुझे भी सुनाओ कहानी, मुझे भी सुनना है। तो उस समय मैं एक हॉस्पिटल की कहानी सुना रहा था, तो वो कहानी मैंने सुनाया, तो कहानी अच्छा लगा मम्मी को, है ना? कि उसमें मैं कभी एकदम बहुत ज़ोर से बोल रहा था, कभी एकदम धीरे बोल रहा था, मतलब वो ऊपर-नीचे वो चीज़ उनको पसंद अच्छा आई। लगा, हाँ, उनको पसंद आया। तो फिर उस तो दिन से आपको एक अभी और तक अलग पता है कॉन्फिडेंस सबको। आ गया, अलग तरीका से। तो हाँ। आप और मैं दोनों अलग-अलग नीश पे काम करते हैं। आप और मैं दोनों अलग-अलग नीश पे एपिसोड्स somewhere we want to earn from the things that we are doing. एक तरीका से हमारे हॉबी है, बात करना हमें पसंद है, आपको स्टोरीज बताना पसंद है, मुझे किसी चीज पे बात करना पसंद है। वही इससे ही हमारा वो एक एंथुजियाज्म आया कि पॉडकास्टिंग जैसा कुछ चालू करते हैं। तो या एग्जैक्टली। व्हाट डू यू थिंक कि किस टाइम पे हमारी ये अर्निंग पीरियड चालू होगी? आपने भी मेरे आसपास ही लाइक अराउंड अगस्त ही शायद आपने चालू किया था। मैं भी अगस्त के आसपास ही चालू किया हूँ अबाउट द होल पॉडकास्टिंग और ये सब के। तो कब आपको लगता है हम लोग अर्न करना चालू कर सकते हैं इससे, और क्या तरीके से अर्न कर सकता है इफ नॉट पॉडकास्टिंग, और क्या क्या दूसरे दूसरे तरीके? सो मैंने एक्चुअली 15 जुलाई को शुरू किया था, एंड देन उसके बाद मैंने कोर्स किया तो उससे बेस क्लियर हुआ। फिर हाँ, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मैंने भी अगस्त से ही एक बेस पकड़ के अपना पॉडकास्ट पब्लिश करना शुरू किया। सो अर्निंग के बारे में अगर बात करें तो मतलब एक्चुअली मैं अपना बताऊं तो मैंने जो है थोड़ा बहुत अर्निंग किया भी है पॉडकास्ट के थ्रू, है ना? ऑलमोस्ट मतलब उतना हाई नहीं, मींस जस्ट किया है मैंने, है ना? और कोई एक कह सकते हैं कंसिस्टेंटली कैश फ्लो नहीं है कि हर वीक या हर मंथ मेरे पास आ रहे हैं। हाँ, लेकिन जो है एक सोर्स मैंने जनरेट कर दिया है कि वहां से जो है हम थोड़ा बहुत पॉडकास्ट के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट और एज अ फ्रीलांसर, उस टाइप से। तो जो जैसे अर्निंग के बारे में बात करें तो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में मैं जो करता हूँ वो जो सबसे पहला है वो है प्रीमियम कंटेंट। प्रीमियम कंटेंट मींस अगर जैसे हम पॉडकास्ट एग्जांपल लें तो जो एज यूजुअली जब हम लोग पॉडकास्ट पब्लिश करते हैं तो उसे कोई भी सुन सकता है ना? वो सिंपली कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे जाएगा सच एज स्पॉटिफाई एंड एप्पल पॉडकास्ट, एंड वहां से जाके उस पॉडकास्ट को सिंपली कंज्यूम कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? विदाउट गिविंग सिंगल कॉइन। सो अगर मैं इसी चीज को एक ऐसे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट कर दूं जहां पे अगर किसी को मेरे पॉडकास्ट सुनने हैं तो उसे पहले पे करना पड़ेगा, है ना? तो इसी टाइप का इसी कंटेंट को हम बोलते हैं प्रीमियम कंटेंट। तो उसी के लिए जो एक नया प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुके हैं उसके। टैग मैंगो उस प्लेटफॉर्म का नाम है। तो टैग मैंगो जो है वो प्रीमियम कंटेंट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ऐसे और अलग-अलग कंट्रीज में भी प्लेटफॉर्म है। हाँ, लेकिन ये मेड इन इंडिया है। दिव्यांशु धामनी को-फाउंडर है उनके। तो मैंने उस प्लेटफॉर्म को एज अ बिगिनर कंज्यूम करने की कोशिश की। मैंने प्रतीक सर के कुछ कंटेंट भी कंज्यूम किया, फिर मैंने सीखा कि इसमें कैसे काम होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, एंड देन उसके बाद फिर मैंने अपने भी पॉडकास्ट एपिसोड जो है वहाँ पे पब्लिश करना शुरू कर दिया। सो इसका जो मेन है कि अगर हमारा अच्छा एक कम्युनिटी बिल्ड है ना? लोगों को हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है, देन डेफिनेटली वो पेड पॉडकास्ट को भी सुनना पसंद करेंगे। सो मेरा एज यूजुअल जो फ्री पॉडकास्ट है जो कोई भी सुन सकता है वो तो चल ही रहा है। हाँ, लेकिन साइड बाय साइड जो है टैग मैंगो पे भी मैंने जो है अपना एक पॉडकास्ट शुरू किया है, एंड उसका नाम है क्रिएटिव कास्ट, है ना? और उससे जो है वो 9 रुपीज पर मंथ लोग पे करके उस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है इसी टैग मैंगो के थ्रू, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट होता है कंसल्टेशन कॉल्स,
है ना, क्यों कंसल्टेशन कॉल्स अगर हम कर रहे हैं तो इट मींस हमारा जो मेन फोकस है वो उस पर्टिकुलर फील्ड से एक लॉन्ग टर्म के लिए है, हम उस चीज को लॉन्ग टर्म करने वाले हैं। सो मैंने शुरू में तो मींस फ्री कंसल्टेशन कॉल किए हैं, ऑलमोस्ट 25 के आसपास मैंने कंसल्टेशन कॉल किए हैं, है ना, और उनमें से 8 से 10 लोगों का खुद का पॉडकास्ट भी शुरू कराया है ना, और अभी जो है हम लोग जस्ट एक पर्सनल टच में भी रहते हैं, आपस में बातचीत भी होता रहता है। सो उससे क्या हुआ कि एक वहाँ पे भी एक कम्युनिटी बिल्ड हुआ, तो वो लोग भी मेरे पेड पॉडकास्ट को भी कंज्यूम करते हैं। तो फ्री में हम शुरू में मींस एज अ बिगनर हम लोग फ्री कंसल्टेशन कॉल कर सकते हैं फॉर जस्ट टेकिंग सम फीडबैक्स और टेस्टिमोनियल, एंड फिर उन फीडबैक्स एंड टेस्टिमोनियल को यूज करके इन फ्यूचर आफ्टर 6 months और 1 year हम जो है उसी फ्री को पेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हमारे फीडबैक है वो हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हाँ इन लोगों ने मेरे कंसल्टेशन कॉल्स को सुना है और ये उनके फीडबैक्स हैं। तो उस फीडबैक से जो एक बेस है वो भी अच्छा हो जाएगा, तो जो हमारे पेड कंसल्टेशन कॉल है उस पर भी जो है लोग स्विच करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। सो मैंने पेड कंसल्टेशन कॉल शुरू किया है, हाँ, लेकिन अभी तक पेड कंसल्टेशन कॉल जो है किसी ने मेरा बाय नहीं किया है, क्योंकि मैंने अभी फ्री भी रखा हुआ है, तो लोग फ्री पे ही ज्यादा जाते हैं। तो अभी मेरा मेन फोकस फ्री कंसल्टेशन कॉल पे ही है, तो इससे तो अभी कोई ज्यादा अर्निंग नहीं है, हाँ, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में बात करें तो ये बेस्ट तरीका है। सिर्फ पॉडकास्टिंग नहीं, कोई भी जो हमारा नीश है जिसमें हम एक्सपर्ट कह सकते हैं थोड़ा बहुत, उस पे हम अपने कंसल्टेशन कॉल्स को जो है वो शुरू कर सकते हैं। When I saw your whole page in Instagram, I was like, ठीक है, मैं go through करता हूँ क्या है क्या नहीं। जब मैंने आपका कंसल्टेंसी वाला चीज देखा ना, वो चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सोचा नहीं था कि कंसल्टेंसी भी एक ऐसा चीज है जिससे यू नो इन पॉडकास्टिंग यू कैन अर्न मनी उस हिसाब से। मैंने नहीं सोचा था। आपका ये आइडिया, इट वाज लाइक समवेयर और द अदर, मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया, और मैं चाहता था कि नहीं, मैं आपके साथ एक एपिसोड तो जरूर करूंगा, मुझे आपके बारे में जानना है, आप कैसे करते हो। एंड ऐसा नहीं है कि आपका इंस्टाग्राम पेज डेली आप कुछ डालते नहीं हो। अगर आपका कोई पोस्ट नहीं होता है तो या तो स्टोरी होता है, स्टोरी नहीं होता है या तो फीडबैक होता है, आप कुछ ना कुछ वैसा अट्रैक्टिव डालते भी हो। और अभी आपका A to Z का अबाउट पॉडकास्ट अल्फाबेट्स ऑफ पॉडकास्टिंग पैटर्न चल रहा है, हाँ, अल्फाबेट्स ऑफ पॉडकास्टिंग, एंड वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा उसमें इंफॉर्मेटिव थिंग्स आप बता रहे हो। चाहे आप में कहीं ना कहीं मैं देखा, नो ऑफेंस, मैंने ये चीज देखा कि आपका जो A था और अभी जो आपका N है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग है। मतलब A वाले में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस कम थी और N वाले में एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ। N से शायद आपने नीश बताई थी, मैंने वो बहुत अच्छा से देखा था, मुझे याद। N से शायद आपने नीश बताया था, राइट? तो हाँ, वैसे तो मुझे एक चीज और जानना था कि आप जो ये डेली इंस्टाग्राम में भी आप अपने वो डालते हो, क्या बोलता है, अलग अलग कंटेंट्स आता है आपके थ्रू, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स दैट यू पुट आउट, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज दैट यू आर पुटिंग आउट, एंड देन आपकी स्टडीज भी साथ साथ चल रही है, एंड फिर उसके साथ साथ आप अपनी कंसल्टेंसी कॉल्स भी ले रहे हो, पॉडकास्ट की भी चैनल चला रहे हो। तो आप अपनी वर्क, एक तरीका से मैं इसको वर्क लाइफ ही बोलूंगा, प्रोफेशनल लाइफ ही बोलूंगा, प्रोफेशनल और ये पर्सनल लाइफ को आप कैसे वो करते हो, क्या बोलता है, बैलेंस करते हो, बैलेंस, या फिर आप कैसे उसको नापते हो, इन द सेंस कि कैसे आपको पता रहता है कि ये सही है उस मोमेंट के लिए, ये उस दूसरे मोमेंट के लिए सही है? सो इसका अगर मैं एक दूसरे तरीके से बताऊं, सो अगर मैं ये चीज से पूछता हूं तो मोस्ट ऑफ द आंसर आता है कि टू डू लिस्ट हम लोग बनाते हैं, कोई भी हमें वर्क करना है तो रात में हमने ये सारा चीज शेड्यूल किया एंड देन उसको अगले दिन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज मैंने भी स्टार्ट की थी, ऐसा नहीं है, मैंने ये चीजें 3 बार की है मैंने, एंड रिजल्ट आया कि नहीं हो रहा था। मीन्स मैंने रात में चीजें मतलब पहले से लिख ली कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, ये सारी चीजें, तो वो एक साइड हो गया। और एक साइड है कि मैंने बिना लिखे ही दूसरे दिन कुछ किया, तो मुझे बिना लिखे वाला जो पोर्शन था उसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा था लिखने वाले से। तो फिर मैंने 3 बार ये चीजें की, लेकिन हाँ मुझे ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर वो चीज मैंने नहीं की। तो अगर बैलेंसिंग की बात करें तो किस समय पे कौन सा काम करना चाहिए,
तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, है ना, नए नए चीजें करने पड़ेंगे। उन्हें एक्सपेरिमेंट मतलब कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटिंग ही जो है इसका एक फंडा है, जिससे हम नई नई चीजें तो कर ही रहे हैं और हमें पता चलता रहेगा कि किस तरीके से कितने चीजों को बैलेंस करना है। मतलब अगर हमने कोई नया वर्क शुरू किया है, जैसे मैंने इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया, सो वो जो इंस्टाग्राम है, सो उसको मीन्स अब हमें अगले जो 3 मंथ्स हैं उसको मतलब कह सकते हैं बिल्कुल अपना 100% देना है। मीन्स अब उस ड्यूरेशन के बीच में हमें कुछ और नहीं शुरू करना है। नहीं तो अगर जैसे मैंने इंस्टाग्राम किया एंड देन आफ्टर 10 डेज मैंने पॉडकास्ट शुरू कर दिया, देन आफ्टर 5 डेज मैंने लिंक्डइन चलाना शुरू कर दिया, फिर फेसबुक पे भी डालने लग गया, कोरा भी चलाने लग गया, तब क्या है कि बिल्कुल पजल्ड हो जाएगा, वो सारी चीजें जो है मिल जाएंगी। तब ना हम लिंक्डइन के रहेंगे ना हम इंस्टाग्राम के रहेंगे, मतलब सब मैसअप हो जाएगा। तो जो इसका सबसे बेस्ट तरीका है, एक्सपेरिमेंटिंग तो करना ही है, तो लेकिन एक समय पे एक चीज एज अ बिगिनर करना चाहिए एंड देन आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ और मैक्स टू मैक्स 3 मंथ उसके बाद जो है हम कुछ नया शुरू कर सकते हैं। तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो पॉडकास्ट से किया था 15 जुलाई के अराउंड, एंड देन पॉडकास्ट को मैंने स्टार्ट किया, वहां से मैंने बोलना सीखा, लोगों से कनेक्ट करना सीखा, एंड देन उस पॉडकास्ट को मैंने वीडियोस पे स्विच कर दिया। अब जो मैं इंस्टाग्राम मोस्टली यूज करता हूँ वो अपने ही पॉडकास्ट को प्रमोट करने के लिए यूज करता हूँ, और अब जैसे तो एक प्रमोट करने के लिए मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ। अब दूसरी तरफ जब मैंने सर्च किया कि क्योंकि जब भी मैं किसी को पॉडकास्ट के बारे में बताता था, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता था कि हाउ कैन वी अर्न थ्रू पॉडकास्ट, है ना, और व्हाई ओनली पॉडकास्ट, आजकल पॉडकास्ट कौन देखता है, कोई सुनेगा नहीं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ, अब क्योंकि सब लोग यही पूछ रहे हैं कि पॉडकास्ट से कैसे कमाया जा सकता है, तो फिर मैंने इसके बारे में सोचा कि क्या इसके रीजन है, कैसे हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि प्रतीक सर को फॉलो करता था, तो मैं देखता था कि वो कंसल्टेशन कॉल करते हैं और हर कंसल्टेशन कॉल का एक क्लिप जो है वो अपने यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं। तो क्योंकि मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, देन आफ्टर 1.5 मंथ मैंने फिर इंस्टाग्राम में स्विच किया, देन फिर जब मैंने लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया तो मुझे अर्निंग के बारे में पता चला, और फिर प्रतीक सर से मुझे कंसल्टेशन कॉल के बारे में पता चला। तो अब एक क्वेश्चन और रहता था लोगों का कि हम कंटेंट आइडियाज कहाँ से लाएं, है ना, तो उसके भी बहुत प्री रिटन फॉर्मूला है, कोरा से ला सकते हैं, ये आंसर द पब्लिक, बहुत से वेबसाइट्स हैं। तो लेकिन मैं क्योंकि प्रतीक सर को फॉलो करता था, तो उनका एक फंडा वो ये है कि आप जितना ज्यादा कंसल्टेशन कॉल कर सकते हैं उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली आपके पास नए नए कंटेंट आते रहेंगे, कभी भी शॉर्ट ऑफ आइडियाज होंगे ही नहीं, क्योंकि जो कॉल है उसी को हम 30 सेकेंड 1 मिनट क्लिप करके अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। तो वहां से मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मुझे कंसल्टेशन कॉल भी करना है। तो मैंने पॉडकास्ट, देन इंस्टाग्राम, एंड देन आफ्टर 2 मंथ्स जब मैंने इंस्टाग्राम में 2 महीने लगभग स्पेंड किया, फिर मैंने उन्हें पता चला कैलेंडली हम यूज कर सकते हैं, तो मैंने कैलेंडली से अपने फ्री कंसल्टेशन कॉल को शुरू किया। अब क्योंकि शुरू में मुझे वो नहीं मिलते थे, मतलब कोई भी बुक नहीं करता था, क्योंकि ज्यादा मुझे लोग जानते भी नहीं थे। हाँ, लेकिन आज के समय में बात करूं तो आज जो है मुझे एक दिन में, मतलब एक वीक में अगर देखें तो मोस्ट प्रोबेबली 3 कॉल्स तो बुक हो ही जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, पेड नहीं है वो भी। जैसे अभी हम लोग का ये इंटरव्यू था, तो इसके जस्ट हाफ एन आवर पहले ही मैं जीमेल पे जाके देखा तो एक कॉल बुक है कल 5 PM के लिए। तो क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गए हैं, है ना, एक अच्छा कम्युनिटी भी बिल्ड हो चुका है, तो अब जो है मेरे को वहां से जो मेरे बुकिंग्स हैं वो आते हैं इसी पॉडकास्ट के लिए, कंसल्टेंसी के लिए। तो इस तरीके से मैंने कंसल्टेशन शुरू किया। अब यही सारी चीजों के साथ साथ जो है पढ़ाई भी चल रहा था। सो अब क्योंकि एक प्लस पॉइंट ये था कि लॉकडाउन का समय था मेरे पास, है ना, तो उसमें क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलते थे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा तो मैं करता नहीं था, कुछ क्लासेस करता था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, हाँ, और एग्जाम्स होते थे तो वो 3 आवर्स का जाता था, और पूरा टाइम जो है वो बुक रीडिंग और इन्हीं सब चीजों में जाता था। तो अब क्योंकि 10 महीना नहीं, लगभग 6 मंथ जो है वो लॉकडाउन चला, तो उस हिसाब से जो है मुझे इन सब चीजों में ज्यादा, मैं कह सकते हैं, मिक्स हो गया, है ना। तो अब जब मैं कॉलेज में भी आया वापस, तो कह सकते हैं कि अब जैसे एग्जाम से मेरे 30 को, और अभी मैं आपके साथ ये बना रहा हूँ मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ, है ना, और दूसरी तरफ हो सकता था कि मैं इसको ना रखूं, बोल दूं कि मेरे एग्जाम्स हैं, मैं उसे बाद में करूंगा, लेकिन मैंने वो चीज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये भी नहीं करूंगा तो मैं भी अपने YouTube पे कहीं ना कुछ देख ही रहूंगा। इस तरीके से जो है वो मैं मैनेज कर लेता हूँ। मींस मैं टू डू लिस्ट को नहीं करता, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके एक समय पे एक चीज, एंड देन आफ्टर 1 मंथ न्यू थिंग।
इस तरीके से। आप ये नहीं बोलोगे कि आपको एक्सपीरियंस ज्यादा हेल्प किया है क्योंकि आपने खुद सीखा है मिस्टेक करके अलग अलग तरीके से? बिल्कुल। क्योंकि हाँ, एक्सपीरियंस अगर तो हम लोग है ही मिस्टेक्स बिल्कुल, वो नहीं तो एक करें, फंडामेंटल है। आपको खुद को अभी अराउंड 8 मंथ्स हो गया है, मुझे 8 मंथ्स हो गया, और मुझे भी ये बात पता है कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग मिस्टेक्स नहीं करेंगे, फंबल नहीं करेंगे, तब हमने सीखने वाले तो कुछ भी नहीं। और खुद उससे पता चलता है कि कैसे टाइम को हम लोग मैनेज करते हैं, कैसे आप दूसरे चीज को इम्पोर्टेंस दे सकते हो, या जो भी तरीका है वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है, उस हिसाब से सब कुछ होता है। तो ये जो कंसल्टेंसी वाला चीज था, सब कुछ था, आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर चुके हो जो आपकी एवरीडे लाइफ के हिसाब से है अभी पास्ट 8 मंथ्स में? पॉडकास्टिंग की ये जर्नी में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? सो पॉडकास्टिंग के चैलेंजेस में सबसे मेन जो चैलेंज होता है वो यही होता है कि बिगनिंग लेवल पे ज्यादा लिसन्स लाना, है ना, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ हम कह सकते हैं वो लिसन्स एंड डाउनलोड्स के थ्रू ही होता है। सो बिगनिंग लेवल में मैं जब स्टोरीज मैंने शुरू किया था, पॉडकास्ट शुरू किया था, तो मुझे लिसन्स नहीं मिलते थे। अभी भी याद है, जो मैंने शुरू के 5 एपिसोड्स थे उनमें टोटली मेरे 9 या 10 लिसन्स थे। मींस 5 एपिसोड्स पब्लिश करने के बाद ऑलमोस्ट 10 लिसन्स थे। तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेट कर रहा था मुझे। तो मैंने उस चीज पे भी सोचा कि किस तरीके से हम जो है अपने ग्रोथ कर सकते हैं पॉडकास्ट में। तो अब मैंने ज्यादा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि पॉडकास्ट में कुछ एसईओ जैसा नहीं है ना, मींस इसमें कोई हैशटैग के लिए नहीं है, ना हम कोई लोकेशन डाल सकते हैं। तो हमें जो करना है वो अपने थ्रू ही करना है। इनऑर्गेनिक कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक के लिए कुछ ज्यादा रास्ते नहीं थे मेरे पास। तो मैंने क्या किया, जो मेरे कुछ ग्रुप्स थे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स थे, जो मेरे नियर वंस थे, दोस्त थे, उनके साथ जो है मैंने अपने पॉडकास्ट एपिसोड्स शेयर करना शुरू किया। तो उसमें भी जो मेरा एक कह सकते हैं चैलेंज था वो ये था कि मुझे लगता था कि मैं भेज तो रहा हूँ, पता नहीं कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। और उसमें भी कोई कोई ऐसे भी थे ह्यूमंस, फ्रेंड्स, जो बिना सुने ही एक फीडबैक दे देते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि दोस्त है ना, मैं से ये तो नहीं बोल सकता कि मैंने सुना नहीं, तो वो बिना सुने ही एक फीडबैक दे देते थे। और मैं देखता था कि इसने जो जाके लिसन्स में देखता था तो लिसन तो पढ़े नहीं है, और लोगों के मुझे पास फीडबैक आ रहे हैं। तो एक ये भी मेरे लिए चैलेंज था कि अब मुझे इससे ही पता चला कि मेरे स्टोरीज जो हैं वो अच्छे नहीं बन रहे, इसका मतलब है ना, मैं अच्छे से बोल नहीं रहा हूँ। तो शुरू में मैं क्या करता था, मैं सिर्फ 1 गो में अपने पॉडकास्ट पब्लिश करता था। मैंने रिकॉर्ड शुरू किया, देन सब कुछ उसी में बोल दिया, है ना, अपने बारे में बताया, स्टोरी बोला, खत्म। फिर उसको मैंने अच्छा करने के लिए मैंने फिर अलग अलग सेगमेंट्स में अपने स्टोरीज बोलना शुरू किया। मीन्स पहले इंट्रो देना, पहले थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करना कि लोग लास्ट तक स्टिक रहें इसमें। एंकर को थैंक यू बोल सकते हैं उस चीज के लिए हम लोग। मेरे लिए हाँ, भी बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल रहा है, एंकर बहुत हेल्पफुल रहा है, बिल्कुल। ये चीज बहुत अच्छा था। हाँ बोलिए आगे। हाँ, फिर मैंने सेगमेंट्स में उसको पब्लिश करना शुरू किया, तब जाके जो है वो, फिर जब मैं शेयर करता था तब मेरे को वहाँ से थोड़े बहुत लिसन्स आए। फिर मैंने अपने वॉइस मॉड्यूलेशन में थोड़ा काम किया, कहीं पे ज्यादा जोर से बोलना, कहीं धीरे बोलना, जिस तरीके का सिचुएशन है उस तरीके के अपने वॉइस को चेंज करना। तो वो वाली चीजें मैंने यहाँ से अप्लाई की, तब जाके धीरे धीरे जो है वो लोग सुन रहे थे। हाँ, लेकिन फिर भी जैसे ऑलमोस्ट अगर मैंने 20 फ्रेंड्स को शेयर किया है तो 5 to 6 लोगों का एक कह सकते हैं नेचुरल और ब्यूटीफुल फीडबैक आता था, जो सच में मेरे को हेल्प करता था, है ना। तो उन्हीं फीडबैक्स के थ्रू फिर मैंने अपने आप को और ज्यादा रीमोल्ड किया, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे वो पर्सनली मुझे फोन करके भी बताते थे, है ना। कुछ एक चैलेंज ये भी था कि बहुत लोग ये बोलने लग गए थे। जो मेरा एक दोस्त है शुभम, मैं नाम भी ले रहा हूँ उसका, वो मुझे बोलता था कि यार तेरे पॉडकास्ट सुनने के बाद ना नींद आते हैं मुझे। तो वो सुन के बिल्कुल स्टार्टिंग के बारे में ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ था मेरा, तो वो सुन के भी मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था कि हाँ, ही इज टेलिंग राइट, मोटिवेट है ना। मैं बोलता था ओके, मैं आज के बाद से जो मेरे 10th एपिसोड होगा उसे सुनना, एंड देन फिर फीडबैक देना। तो फिर इस तरीके से जो है एक साइकिल चलते गया। फिर जो चैलेंजेस थे वो धीरे धीरे जो है वो स्ट्रेंथ बनने लग गया, जो वीकनेस थी। तो इसी तरीके से जो चैलेंजेस थे वो ओवरकम किया। एंड फिर मैंने इसी जो ये स्ट्रेटेजी था व्हाट्सएप वाला, इसको मैंने नाम दिया स्ट्रेटेजिक शेयरिंग, है ना, कि अपने शुरू के 30 एपिसोड्स जो हैं उनमें किस तरीके से हम ऑर्गेनिक रीच ला सकते हैं। तो सिंपली जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनमें अपने लिंक्स शेयर करना है, एंड देन लिखना आई हैव जस्ट स्टार्टेड एन इनिशिएटिव एंड आई वांट योर प्रॉपर फीडबैक। तो इस तरीके से जो एक फीडबैक मिलेगा, उसी तरीके से हम
अपने वीकनेसेस को जो है स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑर्गेनिक रीच ले सकते सर एक कंसल्टेंसी कॉल मेरे को भी दे दीजिएगा। आपको सीरियसली काफी अच्छा से यू नो सो मच अबाउट पॉडकास्टिंग। मेरे को खुद को नहीं पता था। आपने स्ट्रैटेजिकली, माय गॉड दिस इज अमेजिंग। आपसे जो भी चीजें सुनने को मिल रहा है कि कैसे आपने इस चीज को स्ट्रैटेजिक एक वो बना दिया कि स्ट्रैटेजिक शेयरिंग कैसे कर सकते हैं। एंड वो आपका कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट फेज था कि कैसे आप उसके उभरेंगे, एंड उसको आप एक अलग तरीके से वीडियो एंड आपने उसको वो बना लिया एक तरीके से अपना स्ट्रेंथ। अच्छा एग्जांपल दिया है आपने काफी यहाँ पे। काफी अच्छा लगा मुझे ये चीज सुन के कि क्योंकि काफी लोग से जब मैं पूछता हूँ या सुनता हूँ कि उनका चैलेंज क्या था, वो अभी भी कहीं ना कहीं उस चीज से उभर रहे होते हैं या अभी ना कहीं जूझ रहे होते हैं कि यस आई कैन स्टिल यू नो गो आउट एंड डू दैट। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो रुकावट रह जाती है। अभी आप पे क्या है कि हाँ आप कर रहे हो और आपने वो चैलेंज को फेस किया है और फिर उसको अपना एक स्ट्रेंथ बना लिया। इट्स रियली कमेंडेबल जो आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। काफी अच्छा है आपका सेंस ऑफ रियलाइजेशन, काफी अच्छा है कि कैसे उसको कब चेंज करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज जान। थैंक यू आपको जो अब मुझे ये चीज काफी दिन से मैं भी ये चीज बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि पैंडेमिक में आपने भी चालू किया अपना पॉडकास्टिंग, मैंने भी किया, और आप जैसे बोल रहे हो कि काफी लोग ने आपको रीच आउट किया, तो आपको भी पता है कि और भी बहुत जन ने किया। और पॉडकास्टिंग 2020 में एक्चुअली में इंडिया में काफी बड़ा है, जब बढ़ना चाहिए था। जैसे कि आउट ऑफ इंडिया तो जैसे अमेरिका ये सब जगह में तो पॉडकास्टिंग हैज बीन अ थिंग फॉर लास्ट 10 इयर्स पहले से ही। 60-70% पीपल जो है पॉडकास्ट में है, वहां पे, और यहाँ पे अभी के दिन पे चालू हुई है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर क्या है आपके हिसाब से? क्या सोचते हो कि इंडिया का फ्यूचर क्या रह सकता है पॉडकास्ट? एक जगह जाएगा? क्योंकि मुझे पता है कि रेडियो इज वन थिंग दैट इज समवेयर रिलेटेबल टू पॉडकास्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं रेडियो में जो चलता है या कॉन्वर्सेशन होता है किसी के बीच में, सेम थिंग हैपेंस इन पॉडकास्टिंग। अगर आप वीडियो में डालते हो तो वो दूसरा चीज हो जाता है, बट अगर आप ऑडियो में डालते हो तो वो रेडियो के हिसाब से। अब वो आप पे है कि आप कितने देर सुन सकते हो और क्या है। तो उस हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से फ्यूचर क्या है पॉडकास्टिंग का इंडिया में? सो अगर एज पर मैं जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, उसके हिसाब से अगर बताऊं तो जैसे 2018 का जो समय था उसमें जो पॉडकास्ट के हम कह सकते हैं टोटल पॉडकास्ट जो थे वो 5 लाख के अराउंड थे, है ना। और ये है फरवरी 2018 का स्टेटिस्टिक्स। और उसके बाद जब ये लॉकडाउन सब चीजें हुई एंड देन ये जो स्टेटिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ वो है जुलाई 2020 की। तो 5 लाख से जो है वो डायरेक्ट जो है एक ग्रैब होके वो मिलियंस तक पहुंच गया था। मींस जो लाख में था, अब जो पॉडकास्ट एपिसोड, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स है, सिर्फ इंडिया का नहीं है। तो ये जो एक ग्रोथ जो हुआ है ऑलमोस्ट 1.5 ईयर में, सो दिस इज द ओनली प्रूफ कि जो पॉडकास्ट का फ्यूचर है वो कितना ब्राइट है, कितना बूमिंग है। एंड जैसा रेडियो का आपने एग्जांपल दिया, तो जब पहले रेडियोस होता था, ठीक, अब उन्हीं रेडियोस को जो है एक तरीके से कह सकते हैं पॉडकास्ट ने ओवरकम कर दिया है। तो ये जो है उस समय रेडियो का ट्रेंड था, अब पॉडकास्ट का ट्रेंड है। तो ये जो ट्रेंड में चेंज हुआ है ये भी एक प्रूफ है कि जैसे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसी तरीके से नए नए प्लेटफॉर्म जो है वो आ रहे हैं और लोग जो उस प्लेटफॉर्म को ग्रैब भी कर रहे हैं। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स और ये जो ट्रेंड में चेंज है ना, ये सारी चीजें प्रूफ है। और जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जैसे राज शामनी सर हैं एंड देन डिजिटल प्रतीक है, ये सब भी वॉइस ब्रांडिंग को ज्यादा कह सकते हैं फोर्स दे रहे हैं, है ना, कि वॉइस ब्रांडिंग किस तरीके से हमें ज्यादा अच्छा प्रॉफिटेबल बेनिफिट्स दे सकता है। अगर हम गूगल पे भी कुछ बड़ा सा टॉपिक सर्च कर रहे हैं तो हम टाइप करने के ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वॉइस सर्च को, है ना, हम बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो भी एक प्रूफ है। अगर हम कहीं जिम में हैं, कहीं कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, मीन्स कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जहाँ पे वीडियो को कंज्यूम नहीं कर सकते, सो वहां पे पॉडकास्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट है एनी टाइम एनीवेयर। तो इन्हीं सब रीजंस के कारण कह सकते हैं कि पॉडकास्ट का ग्रोथ बहुत ज्यादा है। जैसे आपने बोला ना कि आपने फ्रेंड्स के साथ जब शेयर किए थे, तो मेरे भी फ्रेंड्स जब ड्राइव कर रहे होते थे, जैसे काफी लोग काम वाम करते हैं, बिजनेस है या किसी का खुद का जॉब वॉब वो लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो व्हेन दे यूज्ड टू कम बैक होम, चाहे वो मेट्रो से आए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या खुद का कोई हो,
तो वो लोग खुद अपने गाड़ी में या फिर ईयरफोन्स में वो पूरा अच्छे से फोन में सुनते सुनते आते थे और बोलते थे कि हाँ ऐसे। तो मैं भी एक बार के लिए शॉक्ड रहता था कि आपको पता है मेरे एक फ्रेंड ने ये भी कहा है मुझे कि वो मेरे पॉडकास्ट को सुनती है जब वो शावर कर रही होती है। तो मैं ऐसा था कि क्या बात है, मतलब ऐसे जगह पे भी पॉडकास्ट सुना जा सकता है, क्योंकि हम लोग यूजुअली गाना सुनते हैं और हम उस समय माथा नहीं लगाते कि हाँ कि उस समय पॉडकास्टिंग भी सुना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा सुन के कि हाँ ये एक तरीका का फ्यूचर है, पॉडकास्टिंग इज अ फ्यूचर फॉर द कमिंग जनरेशन। अभी इंडिया में इतना इनकम वाला स्टेटस नहीं आया है, बट सून मेरे को लगता है कि आने वाला है, क्योंकि एंकर एक प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया है कि जहाँ पे कोई भी अच्छा से पॉडकास्टिंग सीख सकता है, बना सकता है एंड पब्लिश। अभी डे बाय डे एंकर में अपडेट्स भी आ रहे हैं। यस यस, अब मैं बस वही वेट कर रहा हूँ कि मॉनिटरी वाला कब आएगा। इंडिया में भी अवेलेबल हो जाए। हाँ बस वही, क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे आप बोले ना, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि पैसे कैसे कमा सकते हैं, मोनेटाइजेशन कैसे हो सकता है। अब वो मोनेटाइजेशन वाला चीज अगर फैक्टर एंकर में डल जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बूम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्टर्स आ जाएंगे, क्योंकि काफी लोग हैं जिनको बात करना अच्छा लगता है, काफी लोग के पास काफी अलग अलग आइडियाज है। जैसे थोड़ी देर पहले जब मैं ऐसे ही गो थ्रू कर रहा था कुछ चीजों से, तो मुझे एक आइडिया आया कि कोई ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं जो पॉडकास्ट में रेसिपीज बता सकते हैं। हो सकता है, हाँ बिल्कुल, 5-6 मिनट 10 मिनट का अच्छा खासा एक वो हो सकता है कि 4-5 तरीके के अच्छे सा एक प्लेटर टाइप का डिश बनाना है एंड वो लोग सारे चीज बता रहे हैं, पीछे का थोड़ा बहुत म्यूजिक डाल दिया, 10 मिनट का अच्छा खासा पॉडकास्ट, किसी ने सुन भी लिया और किसी ने खाना भी बना। मतलब इतना इंटरेस्टिंग नए अलग अलग तरीके की चीजें आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो पॉडकास्टिंग का जर्नी बहुत लंबा रहेगा और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। मेरे को लग रहा है कि आगे का जनरेशन पूरा का पूरा पॉडकास्टिंग पे घुस सकता है। there is a huge future. You know, I know that you are in such a stage that where you can give an advice. Because you are consulting right now, you have the capability of teaching people somewhere or the other how to start a podcast. You have helped a lot of people, and you have crossed so many challenges, so many different kinds of hurdles in the podcasting journey कि मुझे आपसे ये पूछना है, मेरे लिए भी बहुत बड़ा एडवाइस होगा, क्योंकि सीरियसली मैं ऐसे नहीं, आप मेरे से एज पे छोटे हो बट कहीं ना कहीं आप पॉडकास्टिंग के जर्नी में मेरे से आगे हो, क्योंकि आपके पास आइडियाज है, आपके पास नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है। तो ये एपिसोड, ये पूरी की पूरी इंटरव्यू इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा कि आप एक ऐसा एडवाइस क्या देना चाहोगे जो अभी नए पॉडकास्टिंग जर्नी चालू कर रहे हैं या कहीं अटक गए हैं या चालू करना चाहते हैं? सबसे बेसिक एडवाइस जो है वो मेरा यही रहेगा, जितने भी कॉल्स उसमें मैं यही बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू स्टार्ट योर पॉडकास्ट, है ना, तो होता क्या है कि जैसे मेरे से भी किसी ने कॉल पे बात किया है ना, जो भी क्वेरीज थे मैंने सॉल्व किया, बताया किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद मैं उनकी डीएम्स के थ्रू उनसे बात भी करता हूँ कि आपका पॉडकास्ट स्टार्ट हो गया है, क्या नाम है आपके पॉडकास्ट का, आप एपिसोड्स भेजिए, मैं सुनता हूँ, देन एक प्रॉपर फीडबैक भी दूंगा। तो जो पर्सनली मेरे से कनेक्ट होते हैं मैं उनके साथ ये चीज करता हूँ। लेकिन जैसे 20 to 30 लोगों को मैंने बताया है, उसमें से मैक्सिमम जो है वो 8 पीपल्स हैं जिन्होंने शुरू किया है, और जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है पॉडकास्ट, है ना। तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो यही होगा जो मैंने कहानी में सुनाया था, ओवर थिंकिंग वाला, है ना, कि वो बहुत ज्यादा सोचने लग गए होंगे कि मैंने पॉडकास्ट शुरू किया एंड देन अपने वॉइस के थ्रू मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया, अब उसके बाद क्या होगा, है ना, मीन्स लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये सारी चीजें, है ना, बहुत ज्यादा सोचने लग गए। एक रीजन ये हो सकता है। एंड दूसरा रीजन हो सकता है कि मीन्स उन्होंने कॉल तो बुक किया था क्योंकि वो फ्री कॉल था, है ना, उसमें मैंने रहता मेरा कॉल हाफ एन आवर का है और वो एक्सटेंड होके 1 आवर तक चला जाता है ना। तो उसके बाद मैं अपने आप से भी पर्सनली भी चीजें बताने लग जाता हूँ। सो ये हो सकता है क्योंकि फ्री था, फ्री का उन्हें अच्छा खासा नॉलेज मिला, एंड देन उसके बाद उन्होंने
नीचे मींस जस्ट स्वाइप अप कर दिया, हटा दिया। तो ये कुछ 2 कारण है। तो सबसे अच्छा जो मेरा एडवाइस है वो ये रहेगा कि कहीं से भी आपको कुछ पता चल रहा है पॉडकास्ट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में, स्पेशली अगर कोई नया प्लेटफॉर्म है तो उसे जितना ज्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रैब करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, है ना, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैंने सिंपली यूट्यूब पे देखा एंड देन गो थ्रू करके मैंने स्टार्ट कर दिया नीश के लिए। हाँ, और एक और रीजन ये हो सकता है कि लोग ये भी पूछते हैं मेरे से कि नीश क्या रखें, है ना, बिगनिंग लेवल में, कि वो लोग पूछते हैं कि किस टॉपिक पे मैं पॉडकास्ट बनाना शुरू करूं। तो उसका सबसे बेस्ट आंसर यही है कि अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं या यूट्यूब पे हैं तो वहां पे जो आपका नीच है उसी को सिंपली ऑडियो में सिर्फ स्विच कर लेना। एंड अगर ये सब प्लेटफॉर्म पे आप नहीं है तो स्टार्टिंग लेवल में, बिगनिंग लेवल पे नीच का हमें बिल्कुल माइंड में कोई ख्याल ही नहीं लाना है। मींस जो भी हमें अच्छा लगता है बोलना, सिंपली वही हमें बोलना है। एंड देन फीडबैक्स के थ्रू हमें अपने आप को कवर अप करना है, अपने आप को ट्विस्ट करना है कि किस टॉपिक को जो है लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और किस टॉपिक पे हम ज्यादा फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं। तो फिर उसी चीज को जो है अपने नीश में कन्वर्ट कर लेना है। और जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक जो हमें अच्छा लग रहा है उसी चीज को बोलते जाना है। तो यहाँ से जो नीच वाला प्रॉब्लम वो हट जाता है ना। और अगर आप शुरू नहीं कर रहे हैं, ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो उसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हाँ, जैसे मैंने बताया कि कोई भी नया प्लेटफॉर्म आया उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रैब कर लेना चाहिए। मैंने 15 जुलाई को शुरू ग्रैब कर लिया था। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट किया और जब मैं लोगों के सर्च में था कि कौन कौन पॉडकास्ट करता है, मैं कहाँ से सीखूं, तब मेरे को जाके दिखे कि हाँ, मेरे से भी मतलब 100 टाइम्स ज्यादा लोग जो थे वो उन्होंने जस्ट कह सकते हैं 1 और 2 मंथ्स पहले शुरू किया था और अब वो मेरे से बहुत ज्यादा आगे थे, है ना। तो वहां पे जो एक गैप था वो मुझे दिखा कि अगर मैं इसी को और 1 मंथ पहले शुरू करता तो आज जो मेरा पोजीशन है उससे और 5 टाइम्स ज्यादा पोजीशन रहता। तो ये मुझे एक डिफरेंस लगा कि जल्दी अर्ली एडॉप्टर बनने का क्या फायदा है ना। तो जो बेसिक पॉडकास्टिंग से मेरा एडवाइस रहेगा वो ये रहेगा कि बिकम एन अर्ली एडॉप्टर। सिर्फ पॉडकास्ट में नहीं, कोई भी अगर प्लेटफॉर्म है ना, उस प्लेटफॉर्म में आपके रिलेटेड अगर कोई चीज है तब आप उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, जस्ट गिव सम टाइम एंड देन आफ्टर जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एंड नीश वाला जो प्रॉब्लम था उसका तो एक अच्छा आंसर मैंने दे दिया, किस तरीके से नीश को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो उसको एक प्रॉब्लम नहीं बनाना है कि नीश नहीं है तो नहीं शुरू करना है। तो इन तीनों चीजों पे जो है आप काम करेंगे, देन डेफिनेटली जो भी पॉडकास्ट नहीं शुरू कर पा रहा है, जो कारण है, वो सब सॉल्व होके वो अपना पॉडकास्ट तुरंत शुरू करेंगे। और शुरू क्यों करना है, तो उसका सबसे अच्छा आंसर है कि स्टैटिस्टिक्स मैंने अभी बताया ही, इतना ज्यादा ग्रो हो रहा है, तो इससे ज्यादा कोई मतलब मेरे थ्रू एडवाइस हो ही नहीं सकता कि क्यों शुरू करना। ये चीज तो एकदम परफेक्टली आपने बोला है कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो आपसे फ्री कंसल्टेंसी लेके बीच बीच में छोड़ दे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं नीश का प्रॉब्लम रहा है या कहीं ना कहीं उनपे वो एंथुसियाज्म नहीं रहा है। तो आपकी एडवाइस जो थी, ये जो 3 एडवाइस आपने दी है काफी अच्छी दी है, काफी वो है, ग्रैबिंग है। किसी ना किसी को अच्छे से ग्रैब करना तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है, वरना वो जैसे अगर मैंने आपसे अभी ज्ञान ले लिया है और उसी वक्त में अगर उसको बिल्कुल कंज्यूम करके यूज नहीं करूंगा तब तक कोई फायदा ही नहीं है उसका। अगर मैंने पैसा दिया है तब तो वो पैसे पानी में गए, और अगर पैसा नहीं भी दिया तो टाइम तो गया, वो टाइम तो खराब हुआ, सामने वाला का भी और मेरा भी। वो चीज बहुत खराब है। जिस टाइम जो चीज हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं उस टाइम कंज्यूम करके उसको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एकदम परफेक्ट एडवाइस आपने दी है। एक बड़ा क्वेश्चन मेरे मन में भी रहता है और काफी लोग मुझसे ये चीज बहुत बार पूछते भी हैं कि अगर मैं पॉडकास्टर अच्छा बन भी जाता हूँ, आगे जाके मेरी अच्छी रीच हो भी जाती है, तो और क्या क्या तरीके के करियर्स हम ले सकते हैं? आपको कोई आइडिया है किस टाइप की करियर? एक करियर तो मेरे को चलो आइडिया है कि हम लोग रेडियो जॉकी या फिर एक एंकरिंग का करियर कर सकते हैं। मेरे और क्या दिमाग में भी तरीके यही के चल रहा था। क्योंकि काफी लोग के पास एक क्वेश्चन रहता है। आपके हिसाब से और कोई आपको आइडिया है कि क्या कर सकते हैं ये सब के हिसाब से, मतलब पॉडकास्ट के पास? बिल्कुल, अगर हम पॉडकास्ट को और ज्यादा लॉन्ग टर्म लेके चलें तो उससे जो करियर्स के पाथ है बहुत ज्यादा है ना। जो पॉडकास्ट का मेन मोटिव होता है स्टार्ट करने का, वो रहता है कि हमारे पर्सनल ब्रांड को हम और ज्यादा एनहांस कर सके, जो भी हमारा ब्रांड है ना। क्योंकि हम अपने क्या कर रहे हैं, अपने वॉइस से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अगर हमारी वॉइस जो है वो बहुत अच्छी है तो लोग जो है हमारे आवाज के साथ मतलब जस्ट फॉल इन लव, है ना, वो वाला सिचुएशन आ जाएगा, उन्हें हमारा आवाज बहुत पसंद आ जाएगा। तो अगर बाई चांस कहीं पे भी उन्होंने हमारी आवाज सुनी तो वो जस्ट अगर पहचान लिया कि हाँ ये गौरव का आवाज है एंड ये प्रतीक का आवाज है, तो वो क्या है, वो हमारा जो ब्रांड है वो उस पोजीशन पे पहुंच चुका है ना। अब जैसे अगर मैं कहीं पे भी प्रतीक सर का आवाज सुनूं तो मैं बिल्कुल बिना सुने तो नहीं बता पाऊंगा, मीन्स जस्ट सेकेंड में बता दूंगा कि हाँ ये प्रतीक की आवाज है। तो वहां पे क्या हुआ कि उनका जो ब्रांड का कह सकते हैं अथॉरिटी था, जो उनका जो ट्रस्ट था लोगों के साथ, वो और ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ गया। तो हम उस ट्रस्ट का फायदा उठा सकते हैं अगर इन फ्यूचर हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना, तो उस प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करने के लिए हम पॉडकास्ट का यूज कर सकते हैं कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट आया देन सिंपली हम 30 सेकेंड का एक जस्ट एड चला सकते हैं अपने पॉडकास्ट में। अब क्योंकि लोगों को हमारा आवाज बहुत पसंद है तो वो उस एड को सुनेंगे और अगर वो उनके प्रॉफिट में हुआ, उनके बेनिफिट में हुआ, तो वो उसे परचेज करेंगे, है ना। अब क्योंकि हम रेगुलरली पॉडकास्ट पब्लिश कर रहे हैं, हमारा रीच हो चुका है, अब हमें एक फ्लुएंटली बोलने का आदत हो गया है, लोगों से कनेक्ट होने का आदत हो गया है, तो अब हमारे पास जो है अलग अलग वेबिनार, अब क्योंकि ऑनलाइन ज्यादा चीजें होती हैं तो वेबिनार्स के लिए जो है एक रिक्वेस्ट आता है, मीन्स जितने भी अच्छे अच्छे पॉडकास्टर्स हैं उनके पास रिक्वेस्ट आता है कि आप हमारे वेबिनार में इतने घंटे इतने मिनट बोलिए, तो आपके लिए आपको चार्ज भी मिलेगा, है ना। और जब ऑफलाइन में होता था तो ऑफलाइन में तो सेमिनार्स के लिए भी जो है अच्छे अच्छे पॉडकास्टर्स के पास इंटरव्यू कह सकते हैं जो इनविटेशंस हैं वो आते हैं। तो अगर हम एक बहुत अच्छे रीच तक पहुंच चुके हैं पॉडकास्ट में, इट मीन्स जो हमारा ब्रांड है वो और ज्यादा बिल्ड हो चुका है। तो जो हमारा ब्रांड बन चुका है बस हमें उसी का फायदा उठाना है। हम बस थोड़ा सा क्रिएटिव सोचना है कि किस किस तरीके से हम अपने इस एक वेल नोन ब्रांड का फायदा उठा सकते हैं, देन वहां से हम अपने करियर को जो है और ज्यादा आगे ले जा सकते हैं, अपने स्पीकिंग करियर। आपकी ये बात एकदम सही है कि पॉडकास्टिंग के जर्नी में देयर आर अ लॉट ऑफ एरियाज, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ करियर्स प्लेटफॉर्म्स दैट विल बी ओपन। कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि ऐसा गिग मिल सकता है जहाँ पे एंकरिंग हो सके, या फिर वहाँ जैसे आपने बोला ना कि वेबिनार्स में आके आप बोलिए एंड उसका एक छोटा सा चार्ज मिलेगा। काफी कुछ अलग अलग तरीके की चीजें खुल सकती है, दैट्स फॉर श्योर। मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा मन है कि मुझे भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि आगे जाके मैं भी ऐसे कहीं पे जाके बोल सकूं। मुझे क्योंकि बात करने में बहुत अच्छा लगता है, जानने में बहुत अच्छा लगता है। मैं आई एम ऑलवेज यू नो ऐसे सिचुएशंस में रहता हूँ कि हाँ इसके लिए भी मैं क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, चाहे समझ में आए या नहीं समझ में आए, क्योंकि एक क्लैरिटी रहेगा प्लस मुझे वो नॉलेज रहेगा। तो क्यूरियोसिटी जो अंदर रहती है ना वो एनी टाइम रहती है। इसलिए जब मैंने आपका एपिसोड वो पूरा देखा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में, मैंने जब आपका एपिसोड सुना, आपका फर्स्ट एपिसोड सुना था, उस वक्त जो लेटेस्ट था वो सुना था मैंने, तो काफी डिफरेंस एक तो मुझे देखने को मिला। और जो आप कॉन्फिडेंस से रील्स बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, मुझे लगा हाँ मुझे तो जानना है कि कैसे हुआ ये, कैसे क्या है क्या नहीं, मुझे तो जानना है। तो मैं उस हिसाब से फिर गो थ्रू करने लगा हर चीज को। और मैं ये सीजन पे थोड़ा सा माथा लगा ही रहा था। आई वाज प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दिस बिकॉज कहीं ना कहीं इससे करियर बन सकता है। कहीं ना कहीं काफी लोग ऐसे हैं जो अटक जाते हैं एंड आगे नहीं बढ़ पाते। वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि या तो स्टार्ट ही नहीं करना, स्टार्ट करके रुक जाते। तो मेरे मन में हमेशा से ऐसे था कि ये सब करियर्स के बारे में मुझे भी बात करना है सोसाइटी में। जैसे अगर आपने कहा था ना कि आप जब अपने पापा को जाके बताएंगे कि मैं खाली पॉडकास्टिंग करना चाहता हूँ तो वो करने नहीं देंगे। सेम मेरे पापा की थी कि आप साइड पे पढ़ते रहो एंड फिर उसके बाद करो, या फिर साइड पे आप काम करते रहो फिर पॉडकास्टिंग करो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको चाहिए सब कुछ इंस्टेंट। अपनी इंडियन सोसाइटी में थोड़ा सा वैसा ही कल्चर है, मेंटालिटी वो चीज को थोड़ा हाँ अब चेंज करना है। अब टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है। आगे जाके अगर हम लोग देखते हैं अपने आप को कि एक अलग ही कंट्री बनना है तो अपने को बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, बट छोटे से चालू करना पड़ेगा ना। कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिससे आप क्योंकि मैंने देखा है मेरे पास मैं ऐसे भी लोग को जानता हूँ जो एक छोटे से शू डिजाइन से आज के डेट पे ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां मैं नहीं सोच सकता था कि शू डिजाइनिंग से वो इतनी दूर पहुंच सके। मतलब
शू डिजाइनिंग इन द सेंस कि ऑलरेडी शू मेड अप है, शू बन चुकी है, उस पे पेंटिंग करके उसमें डूडल वूडल करके अच्छा सा उसको बेचना वापस से, और उससे फिर पैसा कमा के अलग तरीके से, मतलब जिसमें खुद को सेटिस्फैक्शन मिले, हैप्पीनेस मिले, वैसा कुछ करके वो आगे बढ़े। तो वो चीज के लिए मैंने ये पूरा सीजन किया था कि आप जिसे बोल रहे हैं ना कि आपको इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगता है पॉडकास्टिंग, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। और आगे जाके अगर मैं इससे पैसा कमा पाऊँ मेरे लिए बहुत बड़ा बात हो, और मैं बहुत सेटिस्फाइड रहूंगा, चाहे मैं कम से कम पैसा क्यों ना कमाऊं, बट बहुत अच्छा लगे, वो खुशी बहुत अलग होगी। क्योंकि मेन थिंग यही है कि हमें उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। आप अगर ऐसा कुछ करते हो जिसमें आपको बहुत मजा आता है तो क्यों नहीं। आज अगर विराट कोहली को बोलेगा कि हाँ वो क्रिकेट अच्छा खेलता है लेकिन उसको कुछ और जाके करना, वो तो माथा खराब हो जाएगा उसका, क्योंकि क्रिकेट से वो पैसा कमा रहा है तभी तो वो इतना आगे बढ़ा है, तभी तो वर्ल्ड नंबर 1 में है, वरना तो कैसे हो। वही उसी चीज पे मैं पूरा का पूरा एक करना चाहता हूँ। एक जर्नी होती है राइट, आप जो एक जर्नी में हो उसकी आपकी जो एम थी, आपकी जो मेन क्राइटेरिया थी, वो राइट थी रॉन्ग थी, आपने सही चूज किया नहीं किया, वो आपको पता चलता है आफ्टर एक टाइम हो जाता है, आफ्टर आपके वो एक्सपीरियंस हो जाता है, वो नॉलेज आ जाता है। आप जब थोड़े से वाइस हो जाते हो उस चीज पे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लग जाता है कि ये कैसे होने वाला है। आप नेक्स्ट स्टेप पता आपको चल जाता है कि हाँ इसके बाद क्या होगा वो भी हमको पता, इतने हमें नॉलेज आ जाती है एक टाइम के बाद। तो मुझे ये क्वेश्चन आपसे पूछना था कि जो जब आप स्टार्ट किए थे पॉडकास्ट, उस टाइम के गौरव और आज के डेट के गौरव पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस के बारे में बात करें तो 200, 2000, 2 लाख टाइम्स बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है। सो अभी जस्ट 2 या 3 वीक्स पहले की बात है। सो मेरा एक दोस्त है शिवांग मिश्रा, है, तो वो मेरे हॉस्टल आया था। एक्चुअली उसका कोई एग्जाम था यहीं पे, वो मेरे हॉस्टल रुका था मेरे रूम में, है ना। तो मैं जब पॉडकास्ट यहाँ पे भी रिकॉर्ड करता था उसके साथ, तो बस मतलब वो मेरे पॉडकास्ट सुनता भी था, है ना, लेकिन उसने कभी मुझे एकदम फ्रंट में देखा नहीं था करते हुए। तो मैं जिस तरीके से पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था, जिस तरीके से बात कर रहा था, इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहा था, है ना, इसी तरीके का एक दिन उस दिन इंटरव्यू भी था। तो वो उसने ये 3 दिन यहाँ रुका था, तीनों दिन उसने देखा एंड जस्ट शॉक, है ना, कि मतलब जब 11th 12th 10th की बात, 10th तक अगर मैं बात करूं तो मीन्स बहुत ज्यादा कह सकते हैं शाय किस्म का मैं बच्चा था, है ना। 11th 12th में जब मैंने CS लिया था, जो हमारी CS की मैम थी जो हमें पढ़ाती थी, तो उनका भी जो एक पर्सनल टच हो गया था मेरे साथ, है ना। जस्ट मॉम की तरह थी। तो जब भी मेरे पापा भी उसमें आते थे पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल में, तो वो भी खूब परेशान रहते थे मेरे से कि कुछ ज्यादा बोलता नहीं है, घर पे भी शांत रहता है ना। वो इवन ये भी बोलते थे कि मैं खुद चाहता हूँ कि ये कुछ उल्टा सीधा करे, कंप्लेन आए स्कूल से, कि मैं भी थोड़ा सुनूं कि हाँ गौरव ने कुछ किया। तो जो हमारी मैम थी CS वाली मैम, वो खुद बोलती थी कि हाँ 1-2 साल का समय दो, जैसे ये कॉलेज जाएगा सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा, है ना। और जो वो बोला करती थी अब हो रहा है वो सारी चीजें, है ना। फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो फर्स्ट सेमेस्टर तो जस्ट ऐसे ही गया, देन सेकंड सेमेस्टर से फिर मैंने अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, है ना। देन MLM नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस टाइप होता है, उसमें भी एनरोल किया। फिर वहां से जो है एक जो मेरा माइंडसेट था, एक सिंपल कह सकते हैं सिंपल माइंडसेट से एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट तक जो ये जर्नी हुआ वो इस तरीके से शुरू हुआ था मेरे फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर से। देन फिर लॉकडाउन हुआ, देन मैंने फिर पॉडकास्ट शुरू किया एंड देन पॉडकास्ट जब मैंने शुरू किया तो जो मैं हमारी CS वाली मैम थी वो भी मेरे पॉडकास्ट को सुनती थी। उन्होंने 20 एपिसोड सुने एंड जब मैंने 21st एपिसोड पब्लिश किया तो उनका खुद मैसेज आया था मेरे पास कि बहुत अच्छा जा रहे हो तुम, इस चीज को कंटिन्यू रखो। तो उसने मुझे और ज्यादा मोटिवेट किया। तो मैंने शिवांग का एग्जांपल दिया था, उसने मुझे बताया कि मेरे स्कूल्स के कुछ टीचर्स हैं जो सुनते हैं मेरे पॉडकास्ट, है ना। तो फिर वहां से लगा कि हाँ जो मैम बोला करती थी अब वो सारी चीजें हो रही हैं। तो उस चीज ने जो है वो और ज्यादा मोटिवेट किया एंड देन फिर मैं और ज्यादा फ्लुएंटली पॉडकास्ट पब्लिश करना शुरू किया। सो अगर 15 जुलाई से मैं आज के डेट में बात करूं 28 जनवरी में, सो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस, है ना। 1000 एंड 2000 टाइम्स ज्यादा डिफरेंस है। सो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा एनहांस हुआ है मेरा। पर्सनल एक टच के बारे में बात करें, नेटवर्किंग के बारे में, किस तरीके से लोगों से नेटवर्क किया जाता है, मिला जाता है, मतलब शुरू में हैंडशेक में भी उतना ज्यादा मैं फ्लुएंट नहीं था, है
है ना। तो आज के टाइम पे जो एक नॉर्मल गेट टुगेदर होता है उसमें भी जो है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ अच्छे से, है ना। और उसकी कोई भी मेरे हिसाब से कोई अच्छा टॉपिक है तो उसको मैं एक लॉन्ग मतलब एक कह सकते हैं खींच के और लंबे तक अच्छे से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड सर्कल में भी ये चीज होता है। तो ये जो नेटवर्किंग वाला जो पोर्शन था इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिला है मुझे पॉडकास्ट के थ्रू। तो जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है वो इसी वाले पोर्शन में है। आप जितने शाय थे उतने ही ज्यादा आज Yeah. कॉन्फिडेंट हो किसी से भी बात करना या फिर किसी से भी एक फ्रेंडशिप स्टार्ट करने में, और आप पीछे नहीं हटोगे। आप शायद 2 बार ये चीज जरूर सोच लोगे कि कैसे करना है, बट आप जरूर करोगे। वो कॉन्फिडेंस आप में वो आ गया है। ये एक्चुअली होना भी जरूरी है कहीं ना कहीं। अगर वो डिफरेंस नहीं आए तो पर्पस सही नहीं है ऐसा फील होने लग जाता है। आपका जो पर्पस है वो तो डिफाइन तभी करता है ना जब आप खुद ग्रो करते हो। पर्पस तक आपको पहुंचते पहुंचते जब आप एक अल्टीमेट ग्रोथ तक पहुंच जाते हो तब आपको वो पर्पस फुलफिल्ड लगता है। वरना आप जैसे हो वैसे ही हो और पर्पस तक आप पहुंच रहे हो तब तो कोई फायदा ही नहीं रहे। ये एक जर्नी बहुत अच्छा रहता है। मेरे खुद पे ऐसे थे, मैं खुद ऐसे सोचता था कि बोलने में बहुत डर लगता था ये सब चीज के बारे में जो मैं बात करता हूँ। आज मैं ऐसे ही पॉइंट आउट कर देता हूँ। किसी के लिए भी मुझे लगता है कि कोई कुछ गलत बोल रहा है, कुछ अलग तरीके से बोला जा सकता है, तो मैं उनको अच्छे से, ये नहीं कि एक बार मैं उनको गला पकड़ के बोलता हूँ कि नहीं ऐसे बोल ऐसे नहीं, मैं ये ऐसे बोल देता हूँ उनको कि हाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोल के देखो शायद ये सही रहे। मैं हर जगह ऐसा कोशिश करता हूँ कि हाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी डाला जाए। जैसे आप बोल रहे हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आप पुट कर सकते हो, तो वो चेंज मेरे में भी बहुत ज्यादा आया। और ये आपका जो नेटवर्किंग वाला चीज आपने कहा वो हाँ दैट इज अ प्लस पॉइंट। जो आप बोले कि आप डिजिटल प्रतीक को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, उनको आप देखे हैं, एंड यू नो आप कहीं ना कहीं से उनसे भी सीखते हो। मैं जैसे रणवीर आलाभिटिया का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं उनको बहुत ज्यादा देखता हूँ सीखता हूँ, तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कहीं ना कहीं उनका पॉडकास्ट सुन के, उनका वीडियोस देख के मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं पुश कर सकता हूँ अपने आप को। जैसे आप बोल रहे हो कि नेटवर्क कर सकता हूँ, मैं भी वही करता हूँ कि हाँ मैं पुश। मेरे ये सीजन चालू होने से पहले मैं ऐसा था ठीक है नहीं करूंगा, ठीक है नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं देखा कि नहीं यार लोग कर रहे हैं और लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग ने भी एक जर्नी चालू की है, मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने भी अपने आप को पुश करना चालू कर दिया उसी पर्पस से कि हाँ चलो कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गौरव फॉर द होल अमेजिंग एपिसोड, अमेजिंग इनसाइट, काफी एंटरटेनिंग, काफी इंटरेस्टिंग था आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे जो नॉर्मल टाइम है उससे हम लोग ने थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है, कोई बात नहीं, वो हो जाती है। और वो जैसे बोलना है आपने तो कहा, उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। जैसे आपने कहा हाफ एन आवर का फ्री होता था, 1 आवर 30 मिनट्स का हो जाता था, पता नहीं रहता, पता ही नहीं चलता। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे कॉन्वर्सेशन करके, काफी अच्छा लगा। इट वाज रियली नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच परसेप्शन 101 में आने के लिए। एंड आप कुछ कहना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, अपने फॉलोअर्स? सबसे पहले तो यही मैं एक बार और धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मुझे इनवाइट किया है ना, और इतना अच्छा एक टॉक हुआ है ना। और वो जो टाइम बाउंड होता है वो मुझे मतलब उतना अच्छा भी नहीं लगता है ना, इसलिए मैंने जो मेरा पेड वाला कॉल है उसको कोई टाइम लिमिट रखा ही नहीं है कि जितना बात करना उतना बात करो। तो ये टाइम बाउंड वाला जो यहाँ पे भी पोर्शन था है ना, तो ये भी बताना चाहूंगा कि कोई भी वर्क अगर कर रहे हैं तो उसको उस चीज को टाइम मतलब कह सकते हैं हाँ टाइम सेट करना चाहिए कि इतने टाइम में ये वर्क हो जाए, इतने टाइम में ये वर्क हो जाए। हाँ लेकिन अगर वो एक्सटेंड कर रहा है वो टाइम और वो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अच्छा हमको रिजल्ट दे रहा है, तो टाइम एक्सटेंड करना चाहिए है ना। मीन्स वहाँ पे हमें टाइम बाउंड नहीं करके रखना चाहिए, तो उससे जो है कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। वो काम हमारा वहाँ छूट जाएगा, उसके बाद अगर हम कोई काम कर रहे हैं वो उसमें भी हमने टाइम बाउंड दे दिया तो वो ना पहला वाला वर्क अच्छे से हो पाया और ना ये वाला। तो अगर इम्पोर्टेंट काम है तो उसे जो है टाइम बाउंड से हट के भी टाइम एक्सटेंड करके भी जो है उस चीज को कर सकते हैं। एंड इस इंटरव्यू के थ्रू भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मुझे भी पता चली, एंड मैंने भी कुछ अच्छी खासी इंसाइट्स बताए। सो आई होप कि इंसाइट्स जो है और अलग अलग क्रिएटर्स को हेल्प करेंगी, ताकि वो भी अपने पॉडकास्ट जो है वो इन फ्यूचर या फिर जब भी उनका इंटरेस्ट हो तो वो शुरू कर पाए। सो
So, guys, this is it for this episode. It was really nice to have Gaurav with us today. I hope it was really interesting and intriguing and very informative for everyone who has been listening to this episode. Thank you so much for tuning in. Next episode, next Saturday. And before that, please don't forget to like, share, subscribe, and comment down below. And do ask questions in the comment below to Gaurav, and he'll be, I guess, ready to answer the question. या डेफिनेटली जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर देने के लिए मैं 100% रेडी हूँ. एंड आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है ना, और इस पर्टिकुलर इंटरव्यू को तो लाइक जरूर करना. और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं या उनको कोई भी क्वेरी है तो उनके साथ तो जरूर इस पॉडकास्ट को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना एंड हम दोनों को टैग करना, ताकि हम लोग भी आपको एक फ्री शाउट आउट दे पाए एंड उससे फिर और ज्यादा अच्छा कनेक्शन बन पाए और हम साथ में एक गेट टुगेदर करके ग्रो कर पाए. So, yeah. Thank you so much, Gaurav. Thank you so much. Thank you everyone for listening. Stay tuned. Next episode, next Saturday.